Good morning, students. So today we are going to start with the 11th chapter, that is force and pressure. Okay, we are going to start with this chapter because I want that in essay there must be some portion included from physics as well as biology. So two chapters are already there from biology, but physics only I don't think that we have covered a single chapter. So we will cover one or two chapter from physics now. So the chapter is force and pressure. So first of all we will learn about force and then we will come to the pressure. So force, you have already heard about this word, that is force, but in scientific terms it is having some different meaning. Okay, so let's see what does this says. Force means a force. Force is a push or pull on an object. Very simple. When we apply some force, okay, so body changes its place. Okay, so suppose I have to take some object towards myself, if or either I have to push an object towards the other side, so I need to apply something. If I have to take the things towards myself, I will push that, pull that. If I have to keep the thing away from myself, so I will push that. So that push and pull itself is known as the force. Okay, so if an object has to be moved, it has to be pushed or pulled. Okay, so there are different example you can see from this picture, right? When you push a car, you are pulling this cart. Then you are playing this horses, pulling this cart, playing football, and this rope. Then so these all are the examples of force. Okay, forces are due to interaction. So we know that forces comes into existence when the two objects they interact. Okay, so forces are due to interaction. So let's see first interaction of one object on another object results in a force between the two objects. Means whenever there will be interaction between two objects, okay, and interaction of one object on another object results in a force between the two objects, right? For example, if a man stands behind a car, the car does not move. If the man is standing behind the car, then car does not move. But if he pushes the car, it means he applies force. If he applies force, the car begins to move, and the car will move in the direction in which the man will apply the force. So you can see here the direction of force is like this. So car will also move in the same direction. Okay, so this thing you need to understand, that forces are due to interaction. Later on you will study that interaction may be due to having a physical contact and without having a physical contact. Exploring forces. Okay, if two forces act on a body in the same direction, then the net force is the sum of the two forces. So let's understand this with the example. Okay, suppose two persons are there. Okay, one person is there and second person is there. So there is one big box, okay, and it's very heavy, and they want to push this box towards this direction. So to push this object in this direction, they have to apply force in this direction, right? So if two forces, they are acting on the same direction, so one person is applying force like this, second person is also applying force like this. So अब इसके ऊपर जो force लगेगी वो इन दोनों की forces का sum हो जाएगी, that is F1 plus F2, because the force is in same direction. आपने ये बहुत common example आपके घर पे भी देखा होगा कि आपको कोई चीज़ को push करना है, you are not able to push that, तो एक person को आप बुलाते हो तो help के लिए, तो he will also come, he joins you. So अगर जब वो फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा मूव हो जाएगा. क्यों? बिकॉज आपकी फोर्स जो थी वो उस पर अप्लाई हो रही थी, लेकिन जब दूसरे पर्सन ने भी फोर्स लगाया तो दोनों फोर्सेस क्या होगी, एड ऑन हो गई, और एड ऑन हो गई तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, फोर्स का जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा हो गई.
तो F1 प्लस F2 वो कब होगा, जब दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट, दैट इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस. ओके. सेकेंड कंडीशन हो सकती है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ठीक है. अब क्या हुआ, एक बॉक्स रखा हुआ है बीच में. सपोज यू आर पीपल आर प्लेइंग अ गेम. ठीक है, दो लड़के हैं, ठीक है, मान लेते हैं, और वो एक गेम खेल रहे हैं. तो अब उस गेम में क्या है कि उनको इस बॉक्स को दोनों को मूव करना है इसकी जगह से. ये इसका प्लेस है यहाँ से. जो इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, वही विनर होगा. तो एक पर्सन क्या होगा, वो यहाँ से फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो होगा वो इसको यहाँ से फोर्स लगाएगा. ठीक है. यहाँ वाला जो होगा ये 1 है, ये 2 है. ये वाला जो होगा 1, ठीक है, ये सोचेगा कि ये बॉक्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जाए. 2 वाला सोचेगा कि बॉक्स जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में जाए. अगर दोनों की फोर्स, अब ये बॉक्स किस तरफ जाएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दोनों तरफ से F1 यहाँ से फोर्स लगा रहा है, F2 यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और बॉक्स जो है किस तरफ जाएगा. तो आप मुझे सिंपल सा आंसर दोगे कि मैम जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ बॉक्स जाएगा, ऑब्वियसली. ठीक है. तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा. तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई वो माइनस जितनी दूसरे ने फोर्स लगाई. फोर्स तो दोनों की लगी रही है, ठीक है, एक की ज़्यादा लगेगी तभी मोमेंट होगी. ठीक है. और मोमेंट होगी तो वो कितनी फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव किया, वो मूवमेंट आ जाएगी F2 माइनस F1. ठीक है. सो द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती. अब हम फोर्स जो है, जैसे आप कोई भी सॉलिड चीज़ है जिसको आप kg में मेजर करते हो, डिस्टेंस है, वी यूजुअली मेजर इट 10 किलोमीटर्स, राइट. सो अब फोर्स जो है उसको हम यूनिट लेते हैं न्यूटन. ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो मैंने अभी एक जो पर्सन यहाँ पे है, इसने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की. ठीक है. इसने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की. तो अब क्या हुआ, बॉडी किस तरफ मूव करेगी, ऑब्वियसली इस तरफ की मूव करेगी. ठीक है. लेकिन इसके ऊपर अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि 5 न्यूटन फोर्स लग रही है. नेट फोर्स की मैं बात कर रही हूँ. नेट फोर्स कितनी लगेगी, जो ज़्यादा फोर्स होगी उसमें से हम दूसरे की फोर्स को माइनस कर देंगे. इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगी वो होगी 3 न्यूटन की. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स. तो 3 न्यूटन की नेट फोर्स से ये यहाँ को मूव करेगा. ठीक है. यू डिपेंड अपॉन द फोर्स. अगर यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 15 होता, तो नेट फोर्स कितनी लगती है इसके ऊपर, 30 न्यूटन की. ठीक है. दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो दोनों की जो फोर्सेस हैं वो एड ऑन हो जाती हैं. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं और डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं, F1 F2 का मतलब है F1 फोर्स अलग है और F2 फोर्स जो है वो अलग फोर्स है. ठीक है. तो डिफरेंट फोर्सेस होंगी, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज F2 माइनस F1. अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ. अगर दोनों, मैं आप ही से पूछूं, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये भी F1 लगा रहा है और सपोज ये भी F1 लगा रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, कैन यू टेल मी. वेरी गुड, इट्स 0. क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस. इसने भी इतनी लगाई, इसने भी इतनी लगाई, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा. ठीक है. आप ये करके देख सकते हो, या क्लास में होते हम जरूर करते हो इसको. ठीक है. कोई भी एक बेंच ले लो, दोनों साइड से अगर दो बॉयज़ उसको पुश कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक साइड पे खड़ा है, एक दूसरा दूसरी साइड पर, दोनों उसको सेम फोर्स के साथ अगर फोर्स करेंगे, पुश करेंगे, तो वो बेंच अपने प्लेस से नहीं हिलेगा. क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी. दोनों के फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाता है. उसको हम बोलते हैं कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो लगा रहे हैं, आप देखो दोनों फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे, व्हाट आई टोल्ड यू इज नेट फोर्स. हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होगी. ठीक है. अगर लेकिन एक ने ज़्यादा लगा दी, तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में बेंच मूव कर जाएगा, तो वो
कितनी लगेगी वो हम उन दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। ऑब्वियसली अब किस तरह की फोर्स है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको हमें मोशन में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे। एक बॉल है, एक स्टेशनरी प्लेस पे रखी हुई है, अगर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया हाथ से, पैर से, जैसे भी, तो क्या हो गया, इट विल स्टार्ट मूविंग। मीन्स फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। दीज आर द सर्टन इफेक्ट्स वी विल स्टडी। दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको वो स्टॉप कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मूविंग मोशन और मूविंग। ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, स्पीड में है, तो अगर आप उसके आगे फोर्स लगा दो तो उसकी स्पीड को वो चेंज कर सकती है, वो कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, डिपेंड करेगा आप किस तरह की फोर्स उस पर लगाते हो, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें बॉल जो आती है एक डायरेक्शन से, बॉलर उसको थ्रो करता है, तो बैट्समैन क्या करता है, अपने बैट से उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है, ठीक है। फिफ्थ इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली फोर्स जब आप लगाओगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप शेप को भी चेंज कर सकते हो। फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज। अब और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे रेस्ट से इसको मोशन में लेके आए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आप इसको ले सकते हो स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब साइकिल को अगर आपने स्पीड में बढ़ाना है, आप एक स्लो मोशन में जा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उसकी स्पीड को बढ़ाऊं, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर पैडलिंग ज़्यादा करोगे, मतलब आप ज़्यादा फोर्स अपने पैर से उस पैडल के ऊपर लगाओगे, जिससे क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। आप ऑलरेडी बहुत स्पीड में है साइकिल, तो आप चाहते हो कि मुझे उसकी स्पीड को कम करना है, तो आप क्या करोगे, फोर्स जो आप पैडल के थ्रू उसके ऊपर लगा रहे हो, आप उस फोर्स को कम कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन इंक्रीज द स्पीड और इट कैन डिक्रीज द स्पीड, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, देन इट सेज कि चेंज अ शेप। तो आप देखते हो कि घर पे अगर रोटी बनती है, जो भी स्टूडेंट बना लेते हैं, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हैं, तो एक रोटी को हम जैसे डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ फोर्स। बहुत ईजी है। टाइप ऑफ फोर्स मतलब आपने अभी तो जनरल बात करी कि फोर्स होता क्या है, पुश है, पुश और पुल, ठीक है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब ये टाइप कितनी होती है इसकी, दो तरह की फोर्सेस होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो वेरी मच क्लियर फ्रॉम इट्स नेम itself, that is contact force. It means whenever the forces that are exerted by one object on the another by the direct contact, when these bodies are in contact with each other, ठीक है। सपोज इफ आई एम पुशिंग अ टेबल, आई एम पुलिंग अ चेयर, ठीक है, आई एम लिफ्टिंग अ चेयर, आई एम लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, सो आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट on which I want to apply the force. So I am in direct contact. So such type of forces are known as contact forces. ठीक है, so you can have the simple example, that is muscular force and force of friction, ठीक है। Then comes the non-contact force. So obviously when two objects they exert force on each other but they do not come in contact with each other. Okay, so I think आपके माइंड में आ ही गया होगा ऑलरेडी कि कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जो बिना कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ बिना कांटेक्ट के भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब मस्कुलर फोर्स जो है इसके एग्जांपल क्या है, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल कार्ट आपने देखा होगा, बुल कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, कैमल कार्ट है, तो उसमें क्या होगा, ये जो एनिमल्स है दे आर यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स,
to carry out the physical activities and the other tasks whatever they do. ठीक है, so these animals use the muscular force. So this force comes under the contact force. ठीक है, friction also, you know what is friction. ठीक है, when two objects come, ये आप सिंपली बोल सकते हो the force which is responsible for the changing the state of motion of an object, either from rest to motion or from motion to rest. So such type of force is known as force of friction. ठीक है, or you can say this force of friction that come into existence when two surfaces they come in contact with each other. The two surfaces should be in contact. अगर आपके घर पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक नोटबुक रख दी है, सिंपल सा एग्जांपल है, तो क्या हो, नोटबुक का सरफेस और टेबल का सरफेस, दोनों का सरफेस जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो वो एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का. नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके एग्जांपल्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स है. आप देखो दो मैग्नेट्स हैं, उनके अपोजिट पोल्स को आप एक दूसरे के पास लेके आओ, दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो आप उसको टच भी नहीं करोगे, अपने आप एक दूसरे को खींच लेंगे एक दूसरे की तरफ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस. ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको पता ही है, force exerted by the earth or one object on the other in this universe. ठीक है, so this was all about types of forces. ठीक है, अब इसको हम मस्कुलर फोर्स को थोड़ा एग्जांपल से देखो. यहाँ पे मस्कुलर फोर्स इज अ फोर्स विच इज exerted by the muscles of our body. We use muscular force for various activities. Animals like bullocks, horse, camels, donkeys, elephants also use muscular force to perform various tasks. So these are some of the examples, right? If when you are cycling, horse cart, running, camel cart, so in all these activities the muscular forces are used. Then comes the force of friction that I told you. This force of friction, the force which oppose the motion of an object over a surface. और आप इसको सिंपली अभी इतना ही समझिए कि force of friction क्या होती है. when two surfaces they come in direct contact with each other there exists a force. कोई भी दो सरफेस जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल है ए बॉल रोलिंग ऑन ए ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब जो रोल करती है किसी ग्राउंड के ऊपर, अब ग्राउंड और बॉल दोनों के सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं. कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, इट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मोशन को वो अपोज करती है फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, it will stop pedaling. If we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. Similarly, same example है, अगर आप साइकिल की पेडलिंग को स्टॉप कर दोगे then what will happen, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो साइकिल रुक जाएगी. क्यों, क्योंकि रोड जो है वो और आपकी साइकिल के जो टायर हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अब कांटेक्ट में होने से क्या हो गया, फोर्स एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, विच अपोजेज द मोशन. तो जो आपका आगे जाने वाला मोशन है उसको वो अपोज करती है और थोड़ी देर बाद साइकिल जो है वो मूव करना स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, सो अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.